Hello everyone, welcome to today's class. Now in the last class, we had discussed about the concept of subscription. Now in today's class, we'll be practicing few more questions based upon subscription. All of us know that subscription is a revenue receipt. This is the amount received by not-for-profit organizations, maybe on an annual basis, half-yearly basis, quarterly basis, or monthly basis. So it's a revenue receipt for not-for-profit making organization. Now these receipts are recorded on the debit side of your receipt and payment account. You can see the format of receipt and payment account on your screen, and you can see that on the debit side of your receipt and payment account, the first item, the first revenue receipt is your subscription. Now, as receipt and payment account is being prepared on cash basis, so we are going to record the subscription received, whether it belongs to the present year, current year, or past year, or we have received an advance subscription for the next year. We are going to record all the subscription on the debit side of receipt and payment account. Now, this subscription is taken to the credit side of income and expenditure account. After receipt and payment account, we know that the next account which is prepared by not-for-profit making organizations are your income and expenditure account, to know whether we have surplus or deficit during the year. Now, receipt and payment account was prepared on cash basis. Therefore, subscription of the past year, current year, and future year was recorded in that. But income and expenditure account is being prepared on accrual basis system of accounting. Therefore, in income and expenditure account on credit side, we are going to record the subscription of the current year only. That is why we are going to give the adjustment for the outstanding subscription at the end of the year, which is going to be added, and advance subscription at the beginning of the year, जो कि हमने पिछले साल एडवांस रिसीव किया था. That means that advance subscription which we received last year belongs to the current year. Therefore, advance subscription at the beginning of the year is also being added. Less outstanding subscription received at the beginning of the year, क्योंकि ये पिछले साल की सब्सक्रिप्शन थी, आपने इस साल रिसीव करी है. So since this subscription belonged to the last year, so we are going to subtract it. And last item, less advance at the advance subscription at the end of the year. Now advance subscription at the end of the year is also subtracted. Reason being कि current year के end पे जो advance subscription है, वो तो future year के लिए है. Future year हम current year की income में नहीं show करेंगे future year की subscription. Therefore it is subtracted. Now at the beginning of the session, we said that we are going to do some practical numericals based on subscription. Now before starting the practical numericals, practical problem based on subscription, just two things. Let's discuss first two things. See, there are two terms. First is subscription, or you can say outstanding subscription for the year ended, let's say 31st of March 2020. Fine. This is the term outstanding subscription for the year ended 31st of March 2020. See, what does it mean? It means that, let's say this amount is rupees 10,000. Outstanding subscription for the year ended 31st of March 2020, 10,000. इसका मतलब ये है बेटा कि जो 10,000 अमाउंट है,
ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि सब्सक्रिप्शन इज अर्न्ड, subscription earned but not received, but not received in cash, but not received in cash। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 ईयर एंड की अर्न तो कर ली है, लेकिन हमने कैश में रिसीव नहीं करी। यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन है, this is for exclusively for the financial year 2019 and 20। यानी कि ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना बेटा, ये सिर्फ इसी करंट फाइनेंशियल ईयर की है, 2019 एंड 20 की। दूसरा एक और देखते हैं, एक और स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहती है outstanding subscription as at 31st of March 2020। फाइन। अब यहां पे था बेटा फॉर द ईयर एंडेड, फाइन। यहां पे है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट। अब एज एट का मतलब है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 31st ऑफ मार्च, लेट्स से हम ये कहते हैं ये अमाउंट है 15,000, फॉर द ईयर एंडेड थी 10,000, और हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31st ऑफ मार्च 2020 इज 15,000। यानी कि जो 15,000 सब्सक्रिप्शन है वो इस पर्टिकुलर डेट पे ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। नाउ mark my words, this subscription may or may not have outstanding subscription of the previous year, फाइन। अब इसका मतलब क्या है, ऑफ द प्रीवियस ईयर। फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इस 15,000 में पिछले साल की भी कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो। तो अगर पिछले साल की कोई सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करनी थी, वो अभी करंट ईयर तक भी रिसीव नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली जब मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की, दिस इज माय करंट ईयर की निकालूंगी, तो मैं उसके अंदर पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंक्लूड कर लूंगी। जी, लेट्स से द करंट ईयर इज 2019-20 और मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की 2018-19 की, लेट्स से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 की, ठीक है। ये अमाउंट थी लेट्स से 1000, ठीक है। ये मेरी लास्ट ईयर की थी 1000, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि ये इस साल रिसीव हुई है या नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं हुई। अगर ये नहीं हुई तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31st मार्च 2020 15,000 है, तो 15,000 में से बेटा 1,000 तो पिछले साल की है और 14,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2020। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31st ऑफ मार्च 2020, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 31st मार्च 2020। अगर ये 15,000 है और मेरे को क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 की 1000 थी, इसके बारे में कुछ नहीं दिया कि ये रिसीव हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अगर ये रिसीव नहीं हुई है, अगर पिछले साल की भी करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, तो डेफिनेटली ये जो 15,000 है उसके अंदर ये 1000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की भी इंक्लूड होगी।
तो अगर ये प्रीवियस ईयर की भी इंक्लूडेड है, तो अगर 1000 15,000 में प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है, तो 14,000 will be the outstanding subscription for the year ended 31st of March 2020. यानी कि करंट ईयर मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 1920, उसकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फिर 14,000 मानी जाएगी और 1,000 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। दोनों मिला के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन दिस डेट दैट इज 31st मार्च 2020 15,000 हो गई। अब बेटा जब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जो ऐड करनी होती है वो फॉर द ईयर एंडेड करनी होती है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा था, वी सेड दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमने उस फॉर्मूले को क्या लिखा था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे डेबिट साइड पे दी होती है, ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके अंदर हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है वो फॉर द ईयर एंडेड होती है। अगर एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट ईयर एंड दी हुई है करंट ईयर के, तो मुझे एक बार क्वेश्चन में जरूर वेरीफाई कर लेना होता है कि कहीं इसके अंदर कोई प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, और अगर प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड होती है तो उसको हम हटा के फिर जो अमाउंट बचता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव के अंदर ऐड बैक करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट more clearly with the help of a practical example. Now let's take this practical problem. Now this problem says in the year 2015-16 subscription received were rupees 21,000. That means the current financial year is 2015 and 16, and in this 2015 and 16 the subscription received is 21,000, yani ki this 21,000 is the amount which is shown on the debit side of your receipt and payment account. The second item is that these subscriptions include 300 for 2014 and 15, yani ki is subscription के अंदर हमने 300 जो receive किया है वो पिछले साल का है 2014-15 का, तो obviously ये तो पिछले साल का है, तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को लेके जाएंगे तो ये 300 को 21,000 से रिड्यूस कर देंगे, बिकॉज दिस 300 which we have received in the current financial year does not belong to the current year, it belongs to the previous year, so we'll subtract it. This is an outstanding subscription at the beginning of the year जो कि इस करंट ईयर की नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे subtract कर देंगे। and 400 for the year 2016-17, तो 400 जो सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट मींस दिस इज एन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस अमाउंट आल्सो डजंट बिलोंग टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, सो वी आर आल्सो गोइंग टू सबट्रैक्ट 400 फ्रॉम 21,000 for recording, for the purpose of recording the subscription on the credit side of your income and expenditure account. On 31st of March 2016, 31st of March 2016 बेटा क्या हुआ, ये हमारा एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर हुआ। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 500, यानी कि अब ये क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st of March 2016 इज 500। तो बेटा ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 500 की, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31st of March 2016 है। भाई अब हमने देखना है कि क्या इसके अंदर कोई पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है या नहीं है। फाइन, लेट्स मूव अहेड। इट सेज द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सिमिलर अमाउंट। अब कौन सी अमाउंट सिमिलर, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उससे एक लाइन पहले में हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं एज ऑन 31st of March 2016। तो
ये अमाउंट क्या कह रहा है, ये लाइन कह रही है द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2015 was 600. That means this is the outstanding subscription on 31st of March 2015. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ 1st April 2015, तो वो हम अमाउंट 600 करंट फाइनेंशियल ईयर में ले आए. So this is an outstanding subscription at the beginning of the current financial year. Fine. So outstanding subscription as on 31st of March 2015 या 1st of April 2015 ये बिल्कुल सेम होगा 600. And now we have to find out that what is the amount that should be credited to income and expenditure account as subscription for the year 2015-16. So our current financial year is 15-16. So let's calculate how what amount are we going to show as subscription received on the credit side of income and expenditure account. Now let's start the solution of this problem. Now see, subscription received for the year 2015-16 is 21,000. तो बेटा सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारा जो करंट ईयर है ना, जिसके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, वो है 2015 और 16. ये जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करी है ये 21,000, this we are taking from the debit side of receipt and payment account. So we are going to start with this figure, subscription received, again I'll repeat myself, this is the subscription received for the current financial year, and this is shown on the debit side of your receipt and payment account. Fine. And this is rupees 21,000. Fine. Now this subscription include 300 of the previous year. और ऑब्वियसली जब बेटा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे लेके जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है, तो हम सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. सो दिस 300 इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि हमने करंट ईयर में रिसीव की है, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच वी हैव received in the current financial year. So we are going to subtract it. हम इसको subtract करेंगे. Reason being कि ये हमारे current financial year की नहीं है. Similarly, this 21,000 include rupees 400 which belong to the next financial year. So that is an advance subscription at the end of the year. हमने करंट ईयर में 400 रिसीव किए हैं 21,000 के अंदर, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है. सो दैट इज एन एडवांस सब्सक्रिप्शन. सो दिस वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन at the end of the year, subscription at the end of the current year is 400. This also we are going to subtract. Now outstanding subscription as at 1st of April 2015. Now 1st of April 2015 is the beginning of the current financial year. Advance subscription is 600. अब बेटा यहाँ पर है समझने वाली बात, 600 में से बच्चे हमने 300 पिछले साल के करंट ईयर में रिसीव किए हैं, तो यानी कि 600 माइनस 300 अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो ये जो मुझे फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31st of March 2016 इस 500 में 300 पिछले साल के इंक्लूडेड है. सो दिस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट still outstanding subscription
of the year 2014 and 15. Fine. So this is 300. So if we subtract 300 from 500, we are going to get 200. Now this 200 is the outstanding subscription for the year ended 31st of March 2016, and this is what we have to add. So outstanding subscription हम as at को नहीं देखते, हम for को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन for the year ended 31st of March 2016, yeah, outstanding subscription at the end of the current financial year, add 200. Now in the question there is no advance subscription at the beginning of the year, और अगर advance होती है at the beginning of the year तो हम उसको add कर देते. अब question में तो दिया नहीं हुआ. So if we calculate it, 21,000 minus 700 plus 200, this is 20,500, and this amount we are going to show on the credit side of income and expenditure account. Credit side of income and expenditure account, 20,500. I hope that the solution of this problem is clear to all of you. Now let's solve another practical problem. The problem is like subscription received during the year ended 31st of December 2019 are, see, for 2008 we have received 400, for 2009 subscription received is 21,100, for 2010 subscription received is 800. So the total subscription received during the year was 22,300. बेटा ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव करी है 22,300, ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे. Now there were 450 members, each paying an annual subscription of ₹50. 450 members थे जो कि ₹50 each subscription पे कर रहे थे. ₹450 were in arrears for 2008 in the beginning of the year 2009. तो बेटा टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 450. अब देखो 450 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, उसमें से हमने सिर्फ 400 रिसीव करी है. Calculate the subscription to be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st of December 2009, and also show the treatment of subscription in the income and expenditure account and balance sheet. Now in this question, we'll be learning how to show outstanding and advance subscription in the balance sheet also. Now in this question, see, it's written subscription received for the year ended 31st of December 2019. Total subscription received is 22,300. That means this is the subscription received. First of all, let's see. The current financial year is, है ना, पहले आप फाइनेंशियल ईयर देख लो कि हम किसका कौन सा. करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31st of March. It is year ended, sorry, 31st of December. January to December है ये फाइनेंशियल ईयर इस क्वेश्चन में. So 31st of December 2009. ठीक है, ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, and this subscription received is ₹22,300. Fine. And क्योंकि ये रिसीव्ड है तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है बेटा. अब इस सब्सक्रिप्शन में
एज पर क्वेश्चन 400 पिछले साल की है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव करी और 800 की एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 2010 रिसीव की हुई है। दोनों ही करंट ईयर की नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है, तो ये दोनों फिगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी राइट लेस outstanding subscription at the beginning of the year या for the previous year, at the beginning of the current financial year। फाइन, सो ये बिगिनिंग का है, इस साल का तो है नहीं, पिछले साल का है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेस 400 एंड 800 इज द एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये भी अगले साल के लिए, हमारा इस साल का तो सब्सक्रिप्शन है नहीं। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, फाइन, ये भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 800। तो बेटा मेरे पास जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया वो आ गया 21,100। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। अब मेरे पास बेटे इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ है that there are 450 members and each paying an annual subscription of 50 rupees। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का रिसीव होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 450 मेंबर्स हैं, अगर हर एक मेंबर 50 रुपीज सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो टोटल सब्सक्रिप्शन is going to be is rupees 22,500, and out of this 22,500 we have received 21,100। so if I subtract 21,100 from this figure, देखो कितनी रिसीव होनी चाहिए थी? 22,500, रिसीव कितनी हुई? 21,100। तो यानी कि कितनी रिसीव नहीं हो पाई? हमारे पास 1400 अमाउंट की सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव नहीं हो पाई। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट, अगर मैं निकालूं 31st ऑफ दिसंबर 2019 को, ठीक है, for the year ended तो 1400 है। so I am going to add outstanding subscription for the current year, है ना, for the current year is 1400। so this is 22,500। this amount is going to be shown on the credit side of income and expenditure account। fine। अब outstanding subscription 31st of December 2019 को शो कितनी करेंगे? देखिए for the current year that is for 2009 outstanding subscription is 1400 and outstanding subscription for the last year that is for 2008। ठीक है, देखिए आपके पास एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है that outstanding subscription for 2008 was 450। 450 में से सिर्फ 400 रिसीव हुआ था, तो यानी कि 50 रुपीज सब्सक्रिप्शन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 50 रुपीज सब्सक्रिप्शन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। सो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the end of the financial year is 1,450 rupees। Fine, and this outstanding subscription we are going to show on the asset side of the balance sheet। 22,500 is to be shown on the credit side of income and expenditure account। I am recapitulating the solution. Now, in this question, the total subscription received was 22,300। अब बेटा 22,300 जो मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2009, ठीक है, मेरा यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर है, तो जनवरी टू दिसंबर 2009
टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव वाज 22,300. अब उसमें से 400 प्रीवियस ईयर की थी, 800 नेक्स्ट ईयर की है एडवांस सब्सक्रिप्शन. तो दोनों ही सब्सक्रिप्शन मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 21,100 करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आ गई. अब बेटा नेक्स्ट देखिए, मेरे पास तो ये सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब मेरे को क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली दे रखा है कि 450 मेंबर्स हैं, पर मेंबर 50 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, तो 450 इंटू 50 22,500 तो टोटल सब्सक्रिप्शन मेरे पास आनी चाहिए. और यही सब्सक्रिप्शन मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूंगी. सो 22,500 में से 21,100 करंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करी थी, तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग कितनी रहेगी करंट फाइनेंशियल ईयर की? दैट वाज 1400. 1400 मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगी करंट ईयर की. देन आई एम गोइंग टू ऐड आउट. बेटे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सब्सक्रिप्शन निकालनी होती है ना, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ऐड करते हैं. ठीक है, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. तो 1400 मैंने ऐड की, मेरे पास 22,500 सेम अमाउंट आ गई. अब मेरे पास लास्ट कंसेप्ट क्या रह गया, ये देखना कि फिर टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर होगी कितनी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन 31st of December 2019. करंट फाइनेंशियल ईयर की 1400 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. अब मेरे पास क्वेश्चन में ये और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर 2008 इज 450. 450 में से 400 कैश में रिसीव हुआ है, तो यानी कि 50 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. 2008 की still outstanding is 50 rupees. So 1,450 we are going to show as outstanding subscription as at 31st of December 2019. Now this outstanding subscription I am going to show on the asset side of the balance sheet, current year balance sheet. And this advance subscription I am going to show on the liability side of the current year balance sheet. I'll prepare the balance sheet. Liability side current year balance sheet में 800 आ जाएगा advance subscription, और asset side में आपके outstanding subscription current year के आ जाएगा 14,150. अब क्वेश्चन में भी आज के हमने ये वाला क्यों नहीं ऐड किया? बेटा ये करंट ईयर की नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31st of December 2019 है. ये इसके अंदर प्रीवियस ईयर की भी आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है. हम जब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, तो उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर एंडेड रिकॉर्ड करते हैं, which is in our cases 1400. I hope that the solution and the concept of this subscription is clear to all of you. That's all for today from my side. Thank you very much.